कर रही है अस्मिता आजकल? सर वो बीमार है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। Okay, okay. So friends, shall we start? The results have told that everyone is passed. Thankfully, आप सभी लोगों ने तैयारी की अच्छे से। अभी आप लोगों के पास में रिजल्ट्स हैं। आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो आपका ओबी का और बीयूएम में कितने मार्क्स आए हैं, आप मुझे जरा पिंग करके बताइएगा, ठीक है? Yes, sir. Okay. यस सर। So here I am sharing with you the PowerPoint presentation for the chapter number 2. आज से श्री गणेशाय नमः करना है चैप्टर नंबर 2 का। See, this particular course has been introduced for the first time in MBA and it's a quite difficult paper. Resources are not available, but I'm managing hard to just cover up the things which are not just included in the syllabus but beyond the syllabus also. क्योंकि as a teacher there is my responsibility to see to it that you should get always beyond the syllabus. When you go for competitive exams, when you go for the interview, people will not ask you the question only related to the syllabus of MBA. They will expect you to know all these kind of things. So moving ahead, welcome everyone to my session on the trading system, that is unit 2 of geopolitics and world economic system. This is a university level course. It means you will have a 50 marks assessment by the university through MCQ based paper. Going ahead, let us try to understand the contents of Unit 2. Here in Unit 2, we will be mostly talking on the free trade system, the GATT and WTO, the Uruguay round and the World Trade Organization conferences, then the trade blocs, that is the European Union, OECD, OPEC, SAARC, ASEAN, NAFTA, and then threats to the open trading system. Then we will also discuss about the developments in international trade theory, the bilateral, the multilateral trade agreements, and then impact of trade wars in the liberalized economies. आप सभी लोगों को पता होगा कि the developed countries they dump their products in the developing nations. Dumping कैसे होती है? उनके यहाँ पर ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो एक डेवलपिंग नेशन को चूज करते हैं जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को डंप कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू योर Amazon और Flipkart, you will find the refurbished Apple iPhone 6 or 7 from any other supplier. That refurbished comes from the source of the developed nations. जो लोग अपग्रेड करते हैं, अब उनके लिए तो ये पीस बेकार हो गया. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपने जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कॉफी मेकर मशीन हो सकती है, माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, प्रिंटिंग मशीन हो सकती है, इसको सेल कर देते हैं. कंपनीज उसको रिफर्बिश करती हैं, पैकिंग करती हैं और वापस उसको सेल आउट करती हैं हमारे कंट्रीज में, हमारे जैसे कंट्रीज में. तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं. उनकी कंट्रीज में तो प्रोडक्ट बिल्कुल एडवांस्ड है, जो अप टू डेट है, बट हमारे यहाँ पर हम आउटडेटेड यूज कर रहे हैं और उसके बाद जब ये आउटडेटेड होगा, जब हम ये यूज करना बंद करेंगे तो हम इसको कहाँ डंप करेंगे, हम इसे फॉरेन कंट्री में डंप नहीं करेंगे, हम इसे अपनी ही कंट्री में डंप करेंगे. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू परचेज द ब्रांड न्यू स्मार्टफोन्स. डू नॉट have the habit of purchasing the second hand smartphones or the second hand gadgets, because it will add to the pollution of our country. Later on when you dump it, it will add to the pollution. Now moving ahead, let us try to understand the trading system. ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, और इसके ऊपर काफी डिबेट अभी मची हुई है. आपने देखा कि अभी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता ही रहता है. दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करती हैं और उसके बाद एक कंट्री जब ट्रेड करती है तो दूसरी कंट्री सैंक्शन लगाने की कोशिश करती है. अभी हाल ही में इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम, दैट इज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये S-400 मिसाइल के लिए मिसाइल सिस्टम के लिए इन्होंने रशिया को ऑर्डर किया. इमीडिएटली पेंटागन से आ गया, एक फरमान आ गया कि अगर आपने ये डील कैंसिल नहीं की तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे. तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं फ्री ट्रेड के नाम पर. कई बार
लोगों को धमकाया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेडिंग करना बंद किया या आपने हमारे एनिमी के साथ में ट्रेडिंग की तो हम आपको वो जो बेनिफिट दे रहे हैं वो नहीं देंगे। तो इसकी वजह से काफी डिबेट है कि फ्री ट्रेड क्या एक्चुअल में फ्री ट्रेड है, इज द फ्री ट्रेड एक्चुअली अ फ्री ट्रेड और देयर इज समथिंग एल्स। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पर्टिकुलर chapter as to what is meant by the free trades and what are the elements of the free trade system. As we talk about the trade strategy is basically the system of interference or the intervention from the government in the global business. सिंपल शब्दों में बोला जाए कि किस तरीके से एक कंट्री की गवर्नमेंट आपके जो ट्रेडिंग हो रही है, जो बिजनेस हो रहा है, उसका जो सिस्टम है उसमें अपना इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस करती है। दैट इज सिंपली in terms of the global business. India, if would like to do the business with United States, then what would be the role of the government of United States in creating some interference or probably in intervening in the global business? This is very important. आज बड़ी बड़ी कंट्रीज, उनकी जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस में इंटरवीन कर रही है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि कोवैक्सीन को रिकॉग्निशन नहीं था, जिसकी वजह से डेवलप कंट्रीज ने मैंडेटरी कर दिया कि जब फ्लायर्स आ रहे हैं, वहां पर विजिटर्स आ रहे हैं या जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो यू हैव टू कंपल्सरी गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड वंस अगेन ओवर देयर बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द कोवैक्सीन। उसकी वजह से क्या होगा, अगेन इट विल क्रिएट फर्दर डिलेज। जिसको पहले जाके ज्वाइन करना है उसको एडवांस पे जाना पड़ेगा, इट विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो ये जो फ्री ट्रेड है, ये फ्री ट्रेड एक्चुअली क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू, और ये देखेंगे कि इसमें फ्री ट्रेड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, फ्री ट्रेड होना क्यों जरूरी है और फ्री ट्रेड के क्या क्या फायदे हैं। So the combination and volume of the import and exports are extensively affected by the nature of these trade policies and the interventions. It also influences the investment patterns, the development, nature of competition, pricing, business, consumption, behavior, etc. तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है कि फ्री ट्रेड की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल, it will come only when if there are less restrictions. Then the development can happen only when the government intervention is less and they are approaching to the multinationals or the foreign direct investors or the institutional investors for bringing in the money, for injecting the funds into a particular sector and then reviving the economy. सो फ्री ट्रेड के कई सारे फायदे हैं। अगर आज फ्री ट्रेड इंडिया में नहीं होती तो कोई भी बाहर की कंपनी यहाँ पर आके बिजनेस नहीं कर सकती थी। इफ देयर वुडंट हैव बीन अ फ्री ट्रेड प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, देन इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज टू कम टू इंडिया एंड डू द बिजनेस। टुडे आप इवन इफ यू बाई अ फर्नीचर, सनमाइका खरीद लीजिए, या आप एक पेंट खरीद लीजिए, या आप एक सीमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल स्टील ले लीजिए, any segment, any sector you take, you will find the multinational companies also competing with the local companies. So this is just possible because of the free trade agreement. अगर एक कंट्री अपने दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दे, अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर दे कि we are not going to trade with you, what will happen? Ultimately you will lose the opportunity, and if the raw material comes from that particular territory only, then it will be difficult for you to procure the raw material, and all these things will create further problems and hurdles which will add to the cost. ये सारी चीजें फ्री ट्रेड के अंडर में आती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान सर, भारत ने Yes, ट्रेडिंग बंद India कर दी has ना। stopped all the trade agreements except आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ हम अपनी बस चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, उसके बाद में फिर कारगिल हो गया, उसके बाद में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हो गए, अभी भी वो सीज फायर वायोलेशन करते रहते हैं, अभी ड्रोन अटैक चालू हुआ 2 दिन से। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के साथ में हमने क्या किया, अपना जितने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं हमने ये डिसाइड किया वी विल नॉट डू इट अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, टमाटो, आज पाकिस्तान में 200 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई इंडिया से ही होती है। पेशावर में, इस्लामाबाद में आज की तारीख में शुगर आल्सो।
शुगर, एग्जैक्टली शुगर की कीमत कितनी बढ़ गई है। और कोरिया देख लीजिए, एक एग्जांपल है। मेडिसिन, शुगर, ऑल द एसेंशियल गुड्स आर बीन सोल्ड एट अ वेरी हायर प्राइस। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, 7,000 रुपए में आपको वहां पे कॉफी मिल रही है। वियतनाम अगर आप चले जाते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इन 5,000 रुपीज यू विल गेट अ बाउल ऑफ राइस। क्यों? या तो वहां पे कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, या तो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री उनके साथ में ट्रेड नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से वहां पे पॉवर्टी बढ़ती है, उसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक इंबैलेंस क्रिएट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल गल्फ में आप अगर गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो गल्फ कंट्रीज में ऑयल बहुत ज्यादा है। वो मैक्सिमम क्या करते हैं, जहां से वो इंपोर्ट्स करते हैं उसके बदले में उनको ऑयल देते हैं, उनके पास में एक फायदा है। बट अपने कंट्री के पास में क्या है, हमारे पास 62% एग्रीकल्चरल जीडीपी है। तो हम एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में हम अभी वी आर स्लोली कमिंग अप। आर कंपनीज लाइक इन्फोसिस, आर कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, दे आर डूइंग वेल अब्रॉड। तो ये सारी चीजें जो है, दिस विल ब्रिंग ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, दिस विल ब्रिंग मोर फॉरेन रिजर्व्स टू आवर कंट्री। तो ये सारी चीजें बहुत सपोर्टिव होती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और वहां के प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए। देन जब बात करते हैं फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फ्री ट्रेड होता क्या, व्हाट इज मेंट बाय फ्री ट्रेड। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, free trade is basically an agreement which has been designed to help the producers in growing countries to achieve sustainable and equitable trade relationships. सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि ये एक एग्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, जो ग्रोइंग कंट्रीज में है स्पेशली, क्योंकि वो इतना टैरिफ और उतना टैक्सेस पे करने में अनेबल होते हैं, they are not in a position to pay those taxes and the tariffs and the duties which will further add to the cost, and then they enter into these agreements which will help them to create a sustainable and a equitable trade relationships between the partners. Now members of the fair trade movement add the payment of higher prices to the exporters as well as improved social and environmental standards. The movement basically focuses in particular on commodities or the products that are typically exported from developing countries to the developed countries, but it is also used in the domestic markets. For example, the Brazil, United Kingdom and Bangladesh. Most notably, handicrafts, coffee, cocoa, wine, sugar, fruit, flower and gold are being exported through the free trade only. अगर आपने इसमें ट्रेड एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, टैरिफ्स लगा दिए, ड्यूटीज लगा दी, तो क्या होगा, एक जगह पे सोना सस्ता होगा, एक जगह पे बहुत महंगा होगा, एक जगह पे शुगर और वाइन बहुत सस्ती होगी जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, और एक जगह पे बहुत महंगी होगी बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड द ड्यूटीज. सो द मूवमेंट, the free trade movement seeks to promote a greater equity in the international trading partnership. सभी डेवलपिंग कंट्रीज को बराबर के लेवल पे लाने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया कि आपके पास में जो भी प्रोडक्शन है, आप उसको, उस प्रोडक्शन को डेवलप कंट्रीज को दे सकते हैं, एंड देन यू विल गेट द फेयर प्राइजेस फॉर दैट. Right, this is called as the free trade. It promotes a sustainable development by offering better trading conditions to and securing the rights of marginal producers and workers in the developing countries. जितने छोटे छोटे लोग हैं काम करने वाले, जिनको लघु उद्योग बोला जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, they are getting immensely benefited because of the free trade, because they are not in a position to take care of all the customs, all the duties and all the taxes, just like the bigger companies, since they have the limited funds and the limited resources. Even a small farmer who is manufacturing some agriculture, who is manufacturing some handicrafts, at the same time producing some agricultural produce, can simultaneously focus on the foreign markets also. तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं फ्री ट्रेड की वजह से, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकती. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you. Now talking about what is fair trade. तो fair trade को अगर डिफाइन किया जाए तो यहां पर आपके सामने 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं या 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि फ्री ट्रेड क्यों होना चाहिए.
So there are 6 important conditions or the elements which are being laid down over here, which clearly indicates why the free trade is being required or the fair trade has been required. तो ये fair trade क्या है? Fair trade practices includes working in decent conditions. It means you are not exploiting your labor. आप उनको ये नहीं कर रहे, लेबर को फोर्स नहीं कर रहे, no forced labor or the child labor. Sustainable production and the consumption. You are not exploiting the resources. You are compensating also by doing some measures or by doing some activities which is helping to protect the environment also. Okay, then paying the fair prices to all the works which you have taken from the workers. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि यहाँ का वर्कर वहां दुबई में गया, दुबई में जाने के बाद उसको एक्सप्लॉइट किया गया कि काम करो और आपको पगार मिलेगी 6 घंटे की, आप 10 घंटे काम करोगे. दिस इज नॉट हैपनिंग because of the fair trade policies. Then fair for all employment and other opportunities without any discrimination should be given. ऐसा ना हो कि कंट्री ये बोले कि मैं अपने ही कंट्री के लोगों को प्रायोरिटी दूंगा और बाकी बाहर के लोगों को प्रायोरिटी नहीं रहेगी. So in case of a fair trade agreement, the developing nations get that agreement. In that agreement, they have mentioned clearly that everyone will get the fair employment opportunities without any discrimination across all the member countries. Then you should empower others, not exploitative. अगर कोई सप्लायर बनके यहाँ इंडिया से कोई फार्मर फॉरेन कंट्री में किसी को फूड प्रोसेसिंग कंपनी को अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल केलॉग्स, तो वो केलॉग्स कंपनी उनको एम्पावर करे, एजुकेट करे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करे कि आपको इतने में देना है तो दो, नहीं देना तो आगे निकल जाओ. राइट. तो ये जो चीजें हैं, फेयर ट्रेड इन चीजों को इंश्योर करता है कि इसकी वजह से लोगों को इक्विटेबल इनकम हो, नो डिस्क्रिमिनेशन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, देन वर्क इन डिसेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, देयर शुड बी एम्पावरमेंट एंड नॉट द एक्सप्लॉइटेशन. ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर. Yes, sir. Okay, thank you. Now try to understand what is fair trade. Fair trade is basically when the money we pay for the products gives the producers enough to afford the life's essential, that is the nutritious food, education, community improvements and the healthcare. जब आप किसी को उतना फेयर पेमेंट करते हो, जब वो प्रोड्यूसर ये सारी चीजों को अफोर्ड कर पाए, तो समझ लीजिए कि फेयर ट्रेड हो रहा है. एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, या एक सप्लायर से दूसरे मैन्युफैक्चरर के बीच में, या एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के बीच में, B2B मार्केट के केस में. तो यहाँ पर फेयर ट्रेड में हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि द अमाउंट ऑफ वर्क विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द लेबर, द अमाउंट ऑफ the particular products which you are getting from the other supplier, you should be paying them fully and the price should be fair enough for them to afford all these essential things of the life, which could include the food, education, community improvements and the healthcare services. Is the point clear to all? Yes, sir. Yes sir. I hope Yes, sir. that the point must be clear, because कई बार लोग ये सोचते हैं फेयर ट्रेड का मतलब यही होता है कि केवल प्लेन ट्रेडिंग करना, बाकी कुछ नहीं. फेयर ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है सामने वाले को इतना पैसा तो दे दो कि वो कमा के घर जाके चैन से सुख से अपने बच्चों को और अपने आप को उनका पालन पोषण कर पाए, सरवाइव कर पाए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख पाए. राइट. तो फेयर ट्रेडिंग यही है. आपको भी आपके घर में अगर कोई सर्वेंट आता है तो उसको उतना फेयर पैसा दीजिए कि उसके घर में जाके उसका जो घर चल रहा है वो आपके पैसे से चल रहा है, उससे वो ये सारी चीजों को अफोर्ड कर सके. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द प्रोज एंड कॉन्स. जब हम फेयर ट्रेड की बात करते हैं तो कई बार हम फ्री ट्रेड की भी बात करते हैं. फ्री ट्रेडिंग मतलब कोई ड्यूटीज नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, मेंबर कंट्रीज आर just free to do the trading. European Union is an example, ASEAN is another example, then NAFTA, North American Free Trade Association is another example. The pros are increased economic growth. Free trade or the fair trade will contribute towards the economic growth. Cons are increased job outsourcing. People will do the outsourcing. For example, XYZ company in India
must be looking at Philippines or Brazil as a destination if it is an IT based company, because the labor is quite economical over there as compared to India today. So most of the BPOs and KPOs are now shifting to Philippines and Brazil and North American countries because they are getting much more cheaper labor as compared to India. It could be a translator, it could be a back office executive, it could be a customer care executive kind of job roles. So companies will start doing the outsourcing. That is also one kind of limitation or the cons of the free trade agreement is, and that is why this question is always in debate, that in one case it is bringing the business, it is reviving the economy, it is contributing towards the economic growth, but on the other hand it is also leading towards the outsourcing, right? Multinational companies, when coming to India, manufacturing companies, they have already signed an agreement with various third party agencies like Edico, Randstad, KPMG. Most of the IT companies and manufacturing companies are now filling their requirement through KPMG, Edico, Randstad, etc. It means that tomorrow a time will come when most of the companies will be having only the contractual employees, especially for the semi-skilled or the completely skilled cases also. Today, the companies like ThyssenKrupp, they have already gone for the outsourcing for their particular various departments. They are also planning to do the outsourcing for the stores. They are also planning to do the outsourcing for the production department, which was not even touched upon earlier, but today it is happening. Companies are outsourcing various functions, various departments, because they are getting cheaper labor, they are saving on the cost. That is very important. Companies are not producing the goods on their own. Sometimes the companies are doing outsourcing, somebody else is producing and then putting the label of the brand. For example, Gree is the AC manufacturing company which is located in China. It is having the largest plant for manufacturing AC across the globe, and this Gree AC is manufacturing almost 7 brands out of every 10 ACs which are being manufactured across the globe. They are manufacturing almost 7 brands out of every 10. That is the beauty. But at the same time, if you do outsourcing, it has its own pros and cons. The second is, in case of free trade agreement, the pros is the lower government spending. When the fair trade policies would be there, the government will have to just focus on the other agendas. The minimum support price kind of things will not be so much applicable, because the farmer or the small and medium scale enterprise producers will be able to export everything whatever they are manufacturing to other countries wherever they have the particular engagement or the agreement. So the government will not have to invest further for creating markets for the farmers for purchasing those particular crops or the agricultural produce, or from the small micro scale enterprise or organizations producers. But at the same time, if you look at the cons, it may lead to poor working conditions also. Sometimes you know that the people, those who go to the Gulf countries, they don't get that much of good living conditions over there. It is a well known fact. If you don't know about it, you can explore it further. You will find that in many countries it is the case. The poor working conditions is very much common, especially in the developing nations. For example, today if somebody gives you the opportunity to go and start working in North American countries, the Brazil, the Ghana or other countries, or the Venezuela, you will find that the working conditions are much poor over there as compared to our country also. That could be also the possibility of the free trade or the fair trade, right? The next is the technology transfer. Israel is a very small country, but because of the fair trade and the free trade practices, they are able to transfer the technology to some other company's name, and then they are getting the royalty in return. But at the same time, it can also lead to degradation of the natural resources. You are producing the resources on your own, but at the same time, when you are giving it to someone else, when you are selling it to other organizations, simultaneously you are depleting on your natural resources. Is the point clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Now, why fair trade? हमें fair trade क्यों करना चाहिए? फेयर ट्रेड हमें करना चाहिए सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन. हर किसी को तो उतना एक्सेस होता नहीं रिसोर्सेस का कि वो एक बड़ी मार्केट में जाए, दुकान खरीदे, वहां पर जाके अपने प्रोडक्ट्स को लगाए और लगाने के बाद एक आदमी रखे अपने साथ में और उसको प्रोडक्ट को सेल करें.
तो ये फेयर ट्रेड की वजह से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट घर बैठे बैठे भी बिक सकता है. वन ऑफ माई स्टूडेंट, she has started her business of imitating jewelries. वो क्या करती है, अभी तो कोविड चालू है, साल में करीब 4 से 5 बार फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करती है और वहां से वो बीड्स उठा के लेके आती है, स्टोन्स एंड बीड्स, उसको यूज करके वो इमिटेटिंग ज्वेलरी बनाती है. अभी वो पुणे में टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टॉप 20 ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर में उसका नाम आया, उसको अवार्ड किया गया. उसके बाद उसका ब्रांड जो है वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि दुबई एयरपोर्ट में जो डिजाइनिंग का काम दिया गया है, इंटीरियर डिजाइनिंग का, वो उसको दिया गया है, उसकी कंपनी को. एक घर पे बैठा हुआ इंसान जो रिसोर्सेज जिसके पास में अवेलेबल नहीं है, आज वो फ्रीलांसर और अपवर्क साइट के थ्रू उसको काम मिल रहा है और ये गिग इकोनॉमी एक तरीके से जो क्रिएट हो रही है उसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन भी हो रहा है. हो सकता है कि आपके पास में टाइम ना हो आपकी वेबसाइट क्रिएट करने का, बट एक छोटी सी कंट्री में किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ एक आदमी आपके लिए वो काम कर सकता है. उसके बदले में आप उसको वो पैसा देंगे और बदले में वो आपका काम करके देगा. तो ये पॉवर्टी एलिमिनेशन हो सकता है, इरेडिकेशन हो सकता है इफ यू प्रमोट द फेयर ट्रेड by giving the fair prices to everyone. The next thing is the workplace safety. Fair trade always talks about using the personal protective equipments and the gears so that the workplace safety can be ensured. आपको पता है अगर आप सेफ नहीं हैं तो आपका दिमाग पूरा 100% किसी काम में नहीं लगेगा. आपको हमेशा डर सताता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो ये ऊपर से ये क्रेन आके गिर जाए, ये जॉब आके मेरे ऊपर गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ इसमें मशीन में चला जाए. ये वर्कप्लेस सेफ्टी जो है ये फेयर ट्रेड उसको इंश्योर करता है कि वर्कप्लेस सेफ्टी होना बहुत जरूरी है. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, ये बिकॉज आप एक कंट्री को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. आपको उसके रिसोर्सेज आप ले रहे हैं तो बदले में आपको कंपनसेट करना है. प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एलिवेटिंग द पॉवर्टी, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, everything, and at the same time then using some particular methods through which you can process or you can treat the water before it is getting discharged from the factory so that the people should get the water which is free from all the free radicals, all such kind of harmful chemicals which may create further diseases for the plants and animals or for other species. तो ये सारी चीजें environmental conservation, वाटर एक्सेस सभी को मिलना चाहिए, फूड सेफ्टी, नो चाइल्ड लेबर. नाइके की पॉलिसी है, उन्होंने अपने विजन स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि हम किसी भी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी सूरत में काम नहीं करने देंगे, लेकिन अगर उसकी फैमिली गरीब है तो वो उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे. राइट तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके उन्होंने ये कई सारी ड्राइव्स स्टार्ट की हैं. वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शक्ति प्रोजेक्ट है जो आज हर गांव-गांव में फैल गया है. इस शक्ति प्रोजेक्ट के थ्रू आंगनवाड़ी के जितने वर्कर्स हैं उनको उन्होंने साथ में लिया और उनको ट्रेनिंग दी किस तरीके से सॉस बनाना है, चकली बनाना है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाना है, और इनको पैकिंग करके हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको मार्केट में सेल आउट कर रहा है. एजुकेशन, फेयर ट्रेड का एक और ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल. ऐसा ना हो कि आप केवल जाएं किसी जगह पे, वहां का सब कुछ एक्सप्लॉइट कर लिया और उसके बाद वापस निकल के आ गए. नो, fair trade practices always talks about the education. So the quality products, improving the lives and protecting the environment is the center point of the entire agenda for the free trade practices. Is the point clear to all? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes, sir. ओके जब हम देखिए फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो फ्री ट्रेडिंग का मतलब वो दो दोस्तों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में, वो जो हम बचपन में हमने देखा था कि यार तू मेरे लिए ये होमवर्क कर दे, बदले में मैं तेरा ये काम कर दूंगा. यहाँ पर होमवर्क वगैरह नहीं हो रहा, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है. ग्लोबल बिजनेस के सिनेरियो में जब आपका बिजनेस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रहा है, उस केस में आप सोचिए कि अगर कोई स्मॉल प्लेयर अगर एंटर करना चाहे तो कैसे करेगा.
तो उसके लिए ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चालू की गई, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट गैट एंड डब्ल्यूटीओ, इनको फेयर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गैट और डब्ल्यूटीओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द गैट एंड डब्ल्यूटीओ इन द ओवरऑल promoting the fair trade practices across the member countries. Now, through this particular presentation, you are going to understand the difference between the GATT and WTO and the major functions which they are performing. Talking about the GATT, the full form of GATT is General Agreement on Tariff and Trade. General Agreement on Tariff and Trade. And यहाँ पर क्या होता है गैट के केस में, अगर आप गैट को देखेंगे तो गैट बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजों को प्रमोट करता है। वो प्रमोट क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि आपके यहाँ पर जो कुछ भी है फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो कुछ भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उसको प्रॉपर हैंडल करना, उसके बाद प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट, ये सारी चीजें गैट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, सो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट बनाए गए जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के अंडर में डाल दिए गए, टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल फोरम एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। हर एक कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, छोटी हो या बड़ी हो, छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, स्मॉल प्रोड्यूसर और लार्ज प्रोड्यूसर, irrespective of that, equal opportunities to be given and expansion of the world trade could be possible. Next important point is encouraging the free trade between the member states. जितने member countries हैं उनके बीच में GATT ensure करता है कि free trading हो by regulating and reducing the tariffs on the traded goods, providing a common mechanism for resolving the trade disputes and eliminating the discrimination. एक कॉमन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं तो उसको कितना फास्टर वे में सेटल किया जाए, और डिस्क्रिमिनेशन जो भी है प्रोडक्ट का, दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेशन उसको रिड्यूस किया जाए, एम्पावरमेंट मिले। ये हमारा WTO का मेन फंक्शन है एंड द गैट का मेन फंक्शन है। जब बात करते हैं गैट की, 1930 में जो सबसे बड़ा डिप्रेशन आया उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई। रेस्ट्रिक्शंस वर क्रिएटेड in order to safeguard the interest. Many countries had created lot of restrictions for the trade because they wanted the goods which are being manufactured to be available for only for the local people. रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गए, रॉ मटेरियल बाहर नहीं जा सकता, दूसरी कंट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ द 1930 ग्रेट डिप्रेशन के बाद आने चालू हुए। October 30, 1947, 23 countries at Geneva, they had signed an agreement at the GATT. 128 countries that had signed the GATT agreement by 1994. This is the growth of GATT. Post World War II, the victory nations sought to create the institutions, eliminate the causes of war. आपस में जो वॉर हो रही है, ट्रेड वॉर, उसको रिड्यूस करना, उसको एलिमिनेट कर देना परमानेंटली। ये जितने भी नेशंस थे, विक्ट्री नेशंस जो जीत गए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये ऐसा करेंगे टू रिजॉल्व और टू प्रिवेंट द वॉर थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का रोल आ गया कि अगर कुछ भी वॉर होती है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर करेगा। टू एलिमिनेट द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ वॉर बाय एस्टैब्लिशिंग 3 इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये बैकग्राउंड है गैट एंड WTO का। ऑब्जेक्टिव क्या है गैट का, आइए समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, वियतनाम हो, वेनेजुएला हो, ब्राजील हो, घाना हो, कांगो हो या कोई और कंट्री हो, उरुग्वे फॉर एग्जांपल, हर कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए for the trade in the international market. That was the objective of GATT. Increasing the effective demand for the real income growth of goods, minimizing tariffs and other restrictions on the trade, providing amicable solutions to disputes related to the international trade, ensuring better living standards, and then to strengthen and clarify the rules for the agricultural trade. ये सारी चीजें GATT का ऑब्जेक्टिव थी। इतना समझ में आया आप लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now fundamental principles of GATT. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना। आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको रेशियल या कुछ ऐसे कोई स्लर्स ना हो आपके अगेंस्ट में, आपके प्रोडक्ट का बॉयकॉट ना किया जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन ना हो कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो बस मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी कर सकते हैं। दैट प्रोहिबिशन जो पहले लगता था वो अभी हटाना गैट का प्रिंसिपल है। Concept of consultation aims to provide damage to the trading interest of the contracting parties. कई बार गुड्स आपने यहाँ पे से सप्लाई किए, दूसरे कंट्री में गए, अब जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था वहां पहुंचे तो वो तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे। अब ये जो ट्रांजिट में जो डैमेज हो गए इसका लॉस कौन भरेगा? तो ये सारे डिस्प्यूट जो क्रिएट होते हैं इसको कंसल्टेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करना। गैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द नेगोशिएशंस कैन बी हेल्ड फॉर रिडक्शन टू ऑफ टैरिफ्स, अनदर बैरियर टू ट्रेड एंड स्ट्रक्चर फॉर एम्बॉडिंग रिजल्ट्स ऑफ सच नेगोशिएशंस। सिंपल है, गैट क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन करने के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच में, जिसके थ्रू टैरिफ का रिडक्शन किया जा सके। एक प्रोडक्ट अगर दूसरे कंट्री में जाके मैन्युफैक्चर करना है या एक्सपोर्ट करना है तो उसको टैरिफ या जो बैरियर लगा हुआ है ट्रेड का उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें नेगोशिएशन के थ्रू गैट सॉल्व करता है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अभी बाकी लोग शांत हो गए। आई वॉन्ट टू हियर यस फ्रॉम अदर्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? सूरज, No, कोई sir. क्वेश्चन? नो सर। ओके, No, थैंक sir. यू। No. ओके, सो फंक्शंस ऑफ गैट। अभी तक मैंने आपको जितना ऊपर पढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ गैट एंड बैकग्राउंड ऑफ गैट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गैट का फंक्शन दिया हुआ है। अगर सिलेबस में फंक्शन दिया है तो मेरे लिए ये बताना जरूरी था कि गैट और डब्ल्यूटीए होता क्या है, इसलिए मैंने वो पहले वो स्लाइड्स रखी। अब आया आपका सिलेबस का पार्ट। अब जितने लोगों को ग्रेड्स लानी है केवल उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैट? So the first function is matters related to the tariff and related matters granted to any of the trading partners. ये उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है। जो ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सेटल करना। Ensuring that the tariff reduction or any other trade concession is extended to all the GATT parties. जो भी टैरिफ रिडक्शन हो रहा है या कंसेशन मिल रहा है वो गैट में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको सबको मिलना चाहिए इक्वली। Next is the national treatment. GATT members must give the imported goods treatment equal to that of the domestic goods. जो बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उनको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो डोमेस्टिक गुड्स को मिल रहा है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चार्जेस लाइक रेट्स में बी अप्लाइड टू इंपोर्टेड गुड्स अनलेस इक्वली ट्रीटेड। जब तक आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तब तक आप उसमें क्या है, आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते रहोगे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, एडिशनल चार्जेस मत लगाइए उनके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का एप्पल यहाँ पर आके बिक रहा है, तो न्यूजीलैंड वाले एप्पल अगर यहाँ पर बेच रहे हैं, अगर वही एप्पल में आपने कस्टम ड्यूटी और बाकी की ड्यूटीज लगा दी तो वो एप्पल का प्राइस बढ़ेगा, और फर्दर ड्यूटीज अगर लगा दिए, स्टेट वाइज अगर आपने ड्यूटी लगा दी तो वो एप्पल यहाँ पर आते आते बच जाएगा 500-600 रुपए का किलो। इतना महंगा हो जाएगा कि हर कोई इसको अफोर्ड ना कर पाए। तो यहाँ पर गैट का वही प्रिंसिपल है कि ऐसे कुछ लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना, उसको रिमूव करना, ताकि पॉवर्टी जो है उसको एलिवेट किया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर प्राइसेस मिले सबको, और इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। प्रोटेक्शन थ्रू द टैरिफ प्रोहिबिट्स द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और द कोटा। हर कंट्री को पहले कोटा दिया जाता था गैट के पहले कि इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी वो कोटा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। Contracting parties are expected to provide the protection by means of the tariffs which are transparent and subject to negotiation in the GATT. अभी जो दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं या 4 कंट्रीज कर रही हैं तो उनको आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ता है। उसमें उनको नेगोशिएट करना होता है कि अच्छा ठीक है हम इतने प्राइस में लेंगे, इतने प्राइस में बेचेंगे।
ये जब एग्रीमेंट हो जाता है तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन थ्रू द टैरिफ. लास्ट इज द डिस्प्यूट सेटलमेंट. मेंबर कंट्रीज का आपस में कुछ ट्रेडिंग हो रही है और बीच में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, सो द गैट विल take that particular intervention and they will look at it that how the problems can be resolved, how the disputes can be resolved at a faster pace. So the procedures from Uruguay round negotiations provide more automatic and effective resolutions of the disputes between the member nations. Uruguay में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस उरुग्वे में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बीच में जो उसके पॉइंट्स निकल के आए, उसके बेसिस पे उन्होंने किस तरीके से डिस्प्यूट्स को ऑटोमेटिकली और इफेक्टिव रिजॉल्व करना है, उसके ऊपर मेंबर कंट्रीज ने सहमति जताई. दे हैड गिवन द कंसेंट एज टू हाउ टू ऑटोमेटिकली एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन अ फास्टर वे and they had been agreed upon all the member countries. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now let us understand about the WTO, World Trade Organization. लोगो उसका राइट हैंड साइड में नीचे है, देख रहे होंगे आप लोग, राइट? Now it was established on 1st of January 1995 with its origin in Bretton Woods Conference post World War II. The motive was formed for economic stability, peace and for the reconstructions. Just a moment. Okay, then it has been created by the Uruguay round negotiations between 1986 to 1994. Headquarter is in Geneva in Switzerland. Presently 159 country 164 है एक्चुअली, कुछ वेबसाइट्स उसको 164 क्लेम करती हैं, बट WTO की वेबसाइट में आज की तारीख में जो अपडेटेड है वो है 159 कंट्रीज आर करंटली द मेंबर्स. ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, वो आपको याद रखना है. Now talking about World Trade Organization, it is an organization that intends to supervise and liberalize the international trade. Only global international organizations dealing with the rules of trade between the nations. WTO deals with the agreements negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help the producers of the goods and services and the exporters and importers conduct their business freely. WTO का मेन पर्पस यही है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके बीच में नेगोशिएशन हो सके, उनके बीच में कॉमन एग्रीमेंट हो सके और उसको इंप्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना, ये WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? WTO की मेंबर्स की अगर बात करें, the WTO is composed of 160 countries which represent the 95% of the world trade. Of these 123 were signed during the Uruguay round, जो मैंने आपको अभी दिखाया. उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो था 1986 से 1994 के बीच में, उस टाइम पे 120 मेंबर कंट्रीज ने साइन किया. WTO members do not have to be fully sovereign nations members. Instead, they must be a custom territory with full autonomy in their external relations. Over 3/4 of the WTO members are developing or least developed countries. There are 24 countries that are not members known as observers. These countries are currently negotiating their membership with WTO. The biggest of these non-members in Russia, however, they are in process of accession. Yemen became the newest member on 26 June 2014. ये पॉइंट्स क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No doubt. No, बाकी sir. लोग भी बोल सकते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं है. No, sir. Okay. Thank you. Now, formation of WTO. The GATT 1948 multilateral instrument governing the international trade managed to operate for almost half a century as a semi-institutionalized multinational treaty regime on a provisional basis. 7 rounds of negotiation occurred under the GATT. The Tokyo round during the 70s tackled the trade barriers that do not take the form of the tariffs and to improve the system, but the agreements were not accepted by the member nations of the GATT.
These agreements and policies were amended in Uruguay round, leading to acceptance by the member nations and formation of WTO. तो इनिशियली ये चालू हुआ गैट से, जो आज जिसको हम WTO बोलते हैं, ये गैट की वजह से ही आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. Then आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. This final act concluding the Uruguay round and officially establishing the WTO regime was signed in 1994 at Marrakesh in Morocco and hence known as Marrakesh Agreement. याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. Now the areas of Uruguay round. Uruguay round में क्या क्या चीजें क्या डिस्कस की गई? First, the tariffs and non-tariffs measures, the tropical product categories, textile products, national resource-based products, textile and clothing, agriculture, then the GATT articles, safeguarding the interest of the people, and the investors and the producers, multilateral trade agreements and the arrangements, the subsidies to be given, dispute settlement, and the trade related aspects of intellectual property rights. ये सारी चीजें उरुग्वे राउंड में डिस्कस की गई. कोई डाउट किसी को ये पॉइंट्स में? No, sir. No. No, sir. ओके, No, sir. ओके. अब आता है आपका सिलेबस. अभी तक ये मैं जो बता रहा था, ये 3-4 स्लाइड, ये अगेन आउट ऑफ द सिलेबस था. अब आता है आपका सिलेबस. फंक्शंस ऑफ WTO. फंक्शंस इसके जो हैं, पहला है एडमिनिस्ट्रिंग द WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स. एग्रीमेंट जो भी हुए हैं कंट्रीज के बीच में, उसको एडमिनिस्टर करना. नंबर 2, फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन. नेगोशिएट कराना ट्रेड कंट्रीज के बीच में व्हेन दे आर एंगेजिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज द फंक्शन ऑफ WTO. हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, monitoring the national trade policies, technical assistance and the training for the developing countries, cooperation with other international organizations are the functions of WTO. कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. No, Okay, sir. thank you. Principles of WTO. सबसे पहला प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन. जाति के आधार पर there should not be any discrimination based on any caste, creed, culture, religion or any particular ethnic background or the origin. Non-discrimination. Reciprocity. यहाँ पर अगर बात की जाए रेसिप्रोसिटी की, तो आप मुझे ये बताइए रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं. What is the meaning of reciprocity? Anyone? ओके, मैं बताता हूं. रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है किसी ने आपको कुछ दिया तो बदले में आप भी उससे वही आदान प्रदान कर रहे हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हो. तो अगर मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में जो ट्रेडिंग होगी दैट शुड बी रेसिप्रोसिटी. मींस वही वैल्यू आपको रिटर्न में उनको देना है. जिस वैल्यू के चीजें वो आपको दे रहे हैं वही वैल्यू आपको उनको प्रोवाइड करनी है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कि कम पैसे में लेंगे. अगर हम इंडिया से खरीद रहे हैं तो कम पैसे में लेंगे, चाइना से खरीद रहे हैं तो हम ज्यादा पैसे में खरीदेंगे. ये ऐसा नहीं करना. रेसिप्रोसिटी. बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल कमिटमेंट्स. सभी के लिए कमिटमेंट बाध्य है, मान्य है और सभी को मानने पड़ेंगे. द टैरिफ कमिटमेंट्स have to be followed by all. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. सेफ्टी वॉल्व होने चाहिए. मतलब ये कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, उसका एक छोटा सा प्रोड्यूसर अगर दूसरी कंट्री में बैठा हुआ कोई जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो उसको कैसे पकड़ें? फॉर दैट पर्पस वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लीडिंग एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये जो चीजें होती है ये सेफ्टी वॉल्व है जिसके थ्रू आप अपने राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO. Talking about the structure of WTO, it has 160 members, but अभी मैंने आपको बताया आज की तारीख में वेबसाइट में अगर देखा जाए सो वेबसाइट का एक अलग स्टैटिस्टिक्स आ रहा है. 159 मेंबर कंट्रीज बता रहा है. अगर बात की जाए स्ट्रक्चर तो कुछ बुक्स में WTO के 160 मेंबर्स दिए गए हैं जो एक्सेप्टेड हैं. अराउंड 24 अदर कंट्रीज आर आल्सो नेगोशिएटिंग, बट आज की डेट में उन्होंने 29 कंट्रीज मेंशन किया है. WTO's top level decision making body is the ministerial conference. The second level is also called as the general council, normally headed by the ambassadors and the delegations across the countries. These are the member countries. The general council also meets the trade policy review body and the dispute settlement body.
The third level is called as the Goods Council, the Service Council and the Intellectual Property Council, which reports to the General Council. तो यहाँ पर 3 level है, Ministerial Conference, General Council, and then you have the Services Council or the Intellectual Property Council. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखिए ये स्ट्रक्चर है WTO का. Ministerial Council Conference जो है वो टॉप पे है. Then you have the General Council represented by Dispute Settlement Body, Director General and Trade Policy Review Body, TPRB. Under the Dispute Settlement Body, you have Council 1, 2 and 3, 1 for trade in goods, 2 for trade in services, 3 for trade related aspects of the intellectual rights. Here under Director General, you have Secretariat of the WTO. Under the Trade Policy Review Body, TPRB, you have committees 1, 2 and 3, 1 dealing with on trade and development activities, 2 trading with the balance of payment restrictions, 3 trading with the budget finance and the administration part. Clear हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we end the topic of WTO and GATT, and now is the time for your questions. आज समझ में आया आप लोगों को? जो भी पढ़ा आप लोगों ने, जो कुछ भी मैंने डिस्कस Yes, किया वो आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैंने आपको बहुत कुछ बियॉन्ड द सिलेबस भी बताया है, बट देन यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली. ये सारी चीजें आपको लाइफ में आगे जाननी बहुत जरूरी है. किसी भी चीज का फंक्शन क्या है ये जानने से पहले वो चीज क्या है ये जानना जरूरी होता है. तो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया, उसके मेंबर्स, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हायरार्की, ये सारी चीजें बियॉन्ड सिलेबस, ताकि आप कनेक्ट कर पाए. केवल फंक्शंस पता होने के बाद आधी अधूरी जानकारी लेके लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग. ओके, एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके सर ये ऐसा क्वेश्चन है सर, ये सब्जेक्ट के लिए सर लोकल टेक्स्ट बुक कौन सा यूज करना है? इसके लिए देखिए यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं वो रेफर कर सकते हैं आप. यस सर. ठीक है. उसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको किसी भी बुक में जियोपॉलिटिक्स की कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए या रेफरेंस बुक ले लीजिए, आपको 20% से ज्यादा सिलेबस नहीं मिलेगा एक बुक में. ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है. आपको मिनिमम Yes, 5 से 6 बुक रेफर करनी पड़ेंगी. ओके.